Every child is looking for approval in their own ways. Some children become people pleasers, some children start rebelling. So not everything that's coming to you is because of you. So don't take it personally. Ishina, how to nurture the self-expression of a child? Sometimes children feel that they are loved but they are not liked. जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है तो कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्रेशन दबने लगता है। बच्चों के पास ना फिल्टर नहीं होता. Whatever they feel, it comes out in their behavior. ये बहुत चैलेंज आता है पेरेंट्स को कि बच्चों को हम डिसिप्लिन कैसे करें। ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों के टैंट्रम से डर जाते हैं. टैंट्रम्स को हैंडल करो. टैंट्रम हैंडल हो सकते हैं. टैंट्रम्स कुछ भी नहीं है, इमोशन से निकल जाएंगे. चिल्ड्रन विल एक्सपेरिमेंट विद लाइंग एट सम एज. हमें बच्चे को ना करने के लिए गुस्सा करने की जरूरत है क्या? हमें ना करते हुए काम रहना सीखना है. One of the key challenges that we as adults face is हम में से बहुत सारे लोग, a large percentage of us are unclear about our boundaries. Should we give child the time to self-regulate? Is that healthy? Are you giving the child space to feel their emotions, और आप कह रहे हो चुप हो जाओ and you're trying to solve everything for the child just so that the child gets rid of that emotion? आप उनके इमोशन से डर रहे हैं क्या? क्या आप उनके इमोशंस को समझ रहे हैं? Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I'm an emotional intelligence and mindset coach and also the creator and the host of this podcast. इस podcast के साथ मेरा aim है कि मैं आपको अपने आप से, खुद से मिलवा सकूं. The aim is to help you take your journey within so that you can understand yourself better, so that you can discover new things about yourself and build a fresh, empowering, पावरफुल पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ. क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे नज़रिए में ही चलती है. तो अगर हमारी लाइफ को लेके नज़रिया पावरफुल होगा, एम्पावरिंग होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारी लाइफ भी हमें वैसे ही दिखेगी. और अगर हमारी लाइफ को लेकर नज़रिए में गड़बड़ है तो पूरी लाइफ को चलाने में गड़बड़ होगी. तो हम करते कैसे हैं ये? दिस वी डू बाय टॉकिंग टू आवर गेस्ट. वी टॉक टू देम अबाउट देयर पर्सनल ग्रोथ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन. We talk to them about their experiences, life that they have lived, the lessons and wisdom that they have to share, and how from their journey we can kind of realign our own selves and our lives. So let's master our emotions, our inner world, and understand ourselves better with this episode of the Journey Within podcast. Today, I have with me Ishina Sadana, who is a PhD in human development. She has been actively talking about parenting for years now. She has been training young parents, taking workshops, doing master classes, and personal one-on-one sessions with parents, and of course, sharing her wisdom and her insights through her social media pages on parenting. आज का एपिसोड पेरेंटिंग के बारे में, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड, व्हाट इज़ अ चाइल्ड्स वर्ल्ड, हाउ डू दे अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, वहाँ से शुरुआत करके we will try to go to the emotional development, the cognitive development and the social development of a child, the role of different parenting styles. लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये एपिसोड सिर्फ यंग पेरेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए हैं जिनको शायद अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है. दिस एपिसोड इज ऑल्सो फॉर एवरीबडी, एवरी adult, all of you who are stuck in certain behavior patterns. You know, if you think you are a person who gets angry easily, who gets upset easily, who gets hurt easily, who gets disappointed or sad easily, you are stuck in these patterns. And when a trigger happens, तो आप इन patterns में फंस के रह जाते हो और जो उस समय करना होता है, एक्शन लेना होता है, वहाँ पे वो नहीं कर पाते हो. तो if any of this is that you resonate with, anywhere you have psychological block or a mental block or an emotional block, we are trying to address that through this beautiful conversation with Ishina Sadana. So let's get to it. Hi Ishina. Hello Shobha. Thank you for having me today. Such a pleasure to have you here. At the very beginning of this conversation, I want to tell my viewers that you have two kids of your own, a 7-year-old and a 7 months-old. So you are a young parent, new parent rather, and of course you have a kid who is 7-year-old also. ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता. वो आजकल रील भी चल रहा है ना, संतूर मॉम. So I think you are a संतूर mom. Oh my God. Now, this conversation I'm particularly excited about because हम जैसे बन जाते हैं, हम जैसे इस दुनिया को देखते हैं, हम जैसे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, हम जिन चीज़ों से मोटिवेट या इंस्पायर होते हैं, वो सब की फाउंडेशन हमारे बचपन में हो जाती है. Yes. That is why understanding a child's world is very important. So I want to start right there. Let's try to understand what a child's world looks like. सबसे पहले तो when a kid is born,
what are the key developmental stages in a child's life? And I'm not talking about when he starts to walk या कब वो crawl करने लगते हैं. मैं physical development की बात नहीं कर रही हूँ. I'm talking about cognitive development कि वो दिमाग से उनका बनना, मेमोरी वाले जो फंक्शंस होते हैं वो होने कब शुरू होते हैं, उसके साथ इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कौन से ऐसे डिफरेंट स्टेजेस हैं, कैसे होता है ये? सो व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ये डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है. So the child starts interacting with the environment, looking at the people, starts absorbing things और उनके ब्रेन में कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं. तो जब हम बोलते हैं ना, आपने बोला कि बाद में जाके जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं या हम अपने पैटर्न से नहीं निकल पाते, यहीं से ये पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो कनेक्शंस हमारे ब्रेन में बन रहे हैं वो हमारा बेस बनने वाले हैं आगे की इंटरेक्शंस के लिए. हम उन्हीं कनेक्शंस को यूज़ करने वाले हैं. सो द मिनट द चाइल्ड एंटर्स द वर्ल्ड, वो दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन दैट वे. फिर यहाँ पे एक छोटा सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है. मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसको मैं कहती हूँ कि ये मेच्योरिटी के लिए काम करता है. तो बच्चों का जैसे जैसे एज बढ़ता है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी डेवलप होता रहता है और उनमें मेच्योरिटी आती रहती है. सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेसिकली आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है. आपका Yes. ब्रेन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है. मैं Yes. अपनी ऑडियंस को एजुकेशन के लिए बता रही हूँ, Yes. जिसमें से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है. हाँ. हाँ, तो तो अब जब आप बता. कहते हैं मेमोरी या अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशंस, योर ओन इमोशंस, अटेंशन स्पैन, इमोशनल रेगुलेशन, जो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, हमारा बच्चा बहुत स्टबर्न हो गया है, बहुत ज़्यादा रोता है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी इट्स इन द मेकिंग. तो उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने इमोशंस को समझ के रेगुलेट कर पाएँ. तो जब लोग कहते हैं कि बच्चे को गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ बच्चे को गुस्सा आना इज़ मोर नॉर्मल देन बड़ों को गुस्सा आना. हमारा तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बन चुका है. बाय 24-25 ये बन जाता है. जब ये एक बार फॉर्म हो चुका है, तो अब हमारे पास वो फ़िल्टर आ चुका है. आपको गुस्सा आता है, आप उसको फ़िल्टर करने की कैपेसिटी रखते हैं. डिपेंड करता है कि हमने उसमें क्या एक्सपीरियंसेस से उसको फॉर्म किया है. लेकिन बच्चों में तो है ही नहीं. तो बच्चे अब समझ रहे हैं कि अच्छा, मैं अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर सकता हूँ. जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं, जैसे लोग कर रहे हैं, वो उस चीज़ को सीख लेते हैं. तो यहीं हमारी इमोशनल एजुकेशन शुरू हो गई. अगर हम अपने बच्चों के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो वो अपने इमोशंस को नहीं समझेंगे. वहीं हम अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते बड़े होते-होते, क्योंकि किसी ने हमारे नहीं समझे. तो यहाँ से हमारी इमोशनल, सोशल, जैसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं सबसे. तो एट द वेरी अर्ली एज, राइट, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब उनका एक्सपोजर टू द वर्ल्ड शुरू हो गया है, वो 3 महीने की उम्र में शायद आई साइट डेवलपमेंट हो जाता है. 3 महीने से पहले बच्चे नहीं देख पाते, बट 3 मंथ्स में फुली फॉर्म शायद हो जाता है. मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज है. नहीं, आप मेरा सही बोल पढ़ने का थोड़ा शौक है, मैं थोड़ा रुचि रखती हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. तो हाँ, शायद 3 महीने में उनका जो है आई साइट डेवलप हो जाता है, देखना शुरू हो जाते हैं, सुनना थोड़ा समझना शुरू होते हैं, फिर 6-8 महीने में पकड़ना ग्रैब करना शुरू हो जाते हैं. तो वहीं से उनका जो साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव लेवल, इमोशनल और सोशल लेवल पे बनना शुरू होता है. इसीलिए शायद कई बच्चे सोशली बड़े खुले हुए होते हैं, उनको एंग्जाइटी नहीं होती. कई बच्चे होते हैं सोशल सेटिंग्स में आते हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, उनके एंग्जाइटी लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं. आई थिंक ये दैट दिस स्टार्ट्स राइट एट द वेरी अर्ली एज. यस. देखो, लेट्स से दैट सब कुछ पेरेंट्स ही नहीं कर रहे हैं. बच्चे अपनी पर्सनालिटी, अपना एक नेचर लेके आते हैं. तभी हम नेचर एंड नर्चर दोनों की बातें करते हैं. बच्चों को तब, दैट्स व्हाई वी से बच्चों को समझना ज़रूरी है. We are understanding children. Why are we understanding children? Because children are of different, all children are different. We'll have to understand how they are. So that is also there when you say कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं. लेकिन जो आप कहते हैं कि बिगनिंग से ये फॉर्म हो रहा है, yes, ये बिल्कुल राइट है. इवन 3 वीक्स से पहले, अगर आई साइट 3 मंथ से पहले नहीं आ रही है, तो भी बच्चों का जो ब्रेन कनेक्शन है वो तो बन रहे हैं ना. हम कहते हैं एरिक्सन की स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर वो कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या फिर बोल्बी की अटैचमेंट की बात करता है. ये बिगनिंग में ही शुरू हो गया. एक बच्चा आया, वो बहुत रो रहा है, अगर कोई एडल्ट उसको जाके पैसिफाई करता है, तो वो सिक्योर बनता है. वो कहता है हाँ, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये वर्ल्ड पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये वर्ल्ड मेरे लिए है. और अगर एक बच्चा है जिसकी इमोशनल नीड्स हम पूरी नहीं कर पा रहे, वो मिसट्रस्ट की तरफ चला जाता है. यहाँ से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है. तो जैसे इंडिया में जो पर्टिकुलरली मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो बच्चों को हम इमोशनल रेगुलेट करने का, सेल्फ रेगुलेट करने का टाइम थोड़ा कम देते हैं. बच्चा जैसे ही रोना शुरू होता है, हम फटाफट पहुंच जाते हैं. फॉर्चुनेटली हमारे घर में भी इतने मेंबर्स होते हैं कि कोई ना कोई पहुंच जाता है. वर्सेस वेस्ट में मैंने जो पेरेंटिंग स्टाइल देखा है, वहाँ बच्चे को सेल्फ रेगुलेट करने का टाइम दिया जाता है ना. अगर बच्चा रो रहा है 5-7 मिनट, तो पेरेंट इज नॉट एंशियस. उसने मॉनिटर पे देखा, हाँ ठीक है, रो रहा है, इसकी कोई नीड है खाने पीने की, तो फुलफिल कर दी. अगर आपने अभी फीड किया है फिर भी बच्चा रो रहा है, दे गिव इट सम टाइम, द चाइल्ड सम टाइम. सो व्हाट
what do you think, that should we give child the time to self-regulate? Is that healthy, or should we go immediately rescue them and give them that comfort that your touch gives them? शोभा, जाना प्रॉब्लम नहीं है, जाके हम क्या कर रहे हैं वो देखना है। सो इफ यू आर अवेलेबल फॉर द चाइल्ड इज गोइंग टू सी द वर्ल्ड एज अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। हमें बच्चों को इनसिक्योर भी नहीं करना कि देखो आपके पास कोई नहीं है। आप जाने के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा, आर यू गिविंग द चाइल्ड स्पेस टू फील देयर इमोशंस, और आप कह रहे हो चुप हो जाओ एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड जस्ट सो दैट द चाइल्ड गेट्स रिड ऑफ दैट इमोशन। आप उनके इमोशन से डर रहे हैं क्या? क्या आप उनके इमोशंस को समझ रहे हैं, उनको सिक्योर फील कराने की कोशिश कर रहे हैं? So, if you're not going to try and solve instantly, but be there, let them know that you are there while giving them space to feel that emotion without telling them to stop crying, stop getting angry, giving them space even physically sometimes. So, if a child is crying, they might just throw themselves on the floor. They, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े बच्चे अलग तरीके से करते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं, वो कुछ भी बोलना शुरू हो जाते हैं। टैंट्रम थ्रो करते हैं। टैंट्रम्स तरह तरह के हैं, छोटे से बड़े बच्चे तक टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, वैसे हम भी अडल्ट्स हम लोग भी हम टैंट्रम टैंट्रम थ्रो भी कर। थ्रो। क्वालिटी ऑफ टैंट्रम चेंज हो रहा है। छोटे बच्चे लेट जाते हैं तो हमको लगता है देखो क्या कर रहा है, बड़े बच्चे आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं, हम कहते हैं देखो कैसे बोल रहा है। टैंट्रम्स मतलब इमोशंस ही है ना, इमोशंस ही बाहर आ रहे हैं। हमें टैंट्रम्स दिख जाते हैं, एक्चुअली हमें पर्सन इस तरह से बिहेव करता दिख जाता है, इमोशंस दिखते नहीं है, इसलिए हम उनको मिस कर जाते हैं। तो आई थिंक आज के टाइम में इशिना, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर चाइल्ड हैज बिकम अ वेरी क्रूशियल cornerstone of parenting. हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. You know, if I talk about how the previous generations saw their child's world, वो कैसे अपने बच्चे की दुनिया को समझते थे, वो पेरेंटिंग स्टाइल, वो ज़माना, वो तराना, वो लैंग्वेज, वो सब बहुत अलग था. मुझे लगता है थोड़ा सा फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग था. बल्कि और आज के टाइम में इतने सारे हमारे इमोशनल स्ट्रगल्स आ गए हैं, इमोशनल चैलेंजेस आ गए हैं. तो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट को समझना बहुत ज़रूरी हो गया. So if I talk about emotion, one of the primary emotion from where it all starts is attachment. Attachment to your child and child's attachment to you. Tell me about the role, the significant role that attachment plays in a child's development, and how much of attachment is the regulated or right attachment. मतलब इसका कोई वो तो है नहीं कि हम मेजर कर लें कोई तराजू में कि चलो 50 ग्राम अटैचमेंट हो गई, ये सही है. तो मुझे कुछ ऐसे ना जो मुझे समझ आए, मुझे दिखे कि हाँ, ये हेल्दी अटैचमेंट ऐसी दिखती है और अनहेल्दी अटैचमेंट ऐसी दिखती है. आप मुझे ऐसे समझाओ, एक्शनेबल मुझे चीज़ें बताओ आप. देखो, अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस तरह से वो हम अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरह से हम आगे अपने रिलेशनशिप्स को समझते हैं। तो मैं कहती हूँ कि सारे पेरेंट्स बच्चों को प्यार करते हैं, प्यार तो सभी करते हैं, सबका वे अलग है वो प्यार दिखाने का। अगर एक पेरेंट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, मैं कितने पेरेंट्स से बात करती हूँ एंड आई डोंट जज एनी पेरेंट, बट टू जस्ट पुट इट ओवर हियर, देयर सो मेनी पेरेंट्स हु विल रियली गेट एंग्री एट देयर चिल्ड्रन। प्यार वो बहुत करते हैं अपने बच्चों को, पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं उनके अच्छे के लिए, इंटेंशन सही है। एटलीस्ट उनको तो ऐसा हाँ, लगता उनको तो है. ऐसा ही लगता है। मारते भी हैं, थप्पड़ भी लगाते हैं उनके अच्छे के लिए, बहुत ज़्यादा भी थप्पड़ लगाते हैं, ये भी मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ, लेकिन फिर क्या करें, सही बातें कैसे सिखाएं। अब उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको, है ना? अब यहाँ पे बच्चा हो गया है कन्फ्यूज़्ड। कैसे कंफ्यूज कैसे हो गया आप सोचो तो मेरे मुँह पे आता है टॉक्सिसिटी, है ना? एक टॉक्सिक कि रिलेशनशिप है ना? बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा प्यार दोनों कर रहे हो आप? जहाँ पे सिक्योरिटी ढूँढ रहे हैं वहीं पे मार खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो एक इनसिक्योरिटी अंदर है ना, यू फील अनसेफ। अ चाइल्ड, यहाँ से एंग्ज़ायटी आनी शुरू होती है बिकॉज़ जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी से डर रहे हैं भई। मुझे लगता है यहाँ पे आपका सेल्फ एक्सप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज टू अ हेल्दी लिविंग और बिकमिंग अ फुली फंक्शनल अडल्ट इज दैट यू हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. आपको पता है कि आप कौन हो, आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, कैसे, क्या आपकी क्रिएटिविटी है, क्या आपकी इमेजिनेशन है. जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है तो कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्रेशन दबने लगता है और आप किसी और के बोरोड तरीके से अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने लगते हो, क्योंकि आपको लगता है शायद यही एक्सेप्टेड है या यही माना जाएगा. क्योंकि एज़ अ चाइल्ड हम चीज़ों को एज़ इट इज़ ले रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। और बच्चों को क्वेश्चन करना अलाउ भी नहीं किया जाता कभी-कभी, कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करो। तो सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे आएगा? थोड़ी-सी आर्ग्यूमेंट होती है तो हमें लगता है कि बच्चा बदतमीज़ हो रहा है। अगर बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, तो अगर आज हम सुनेंगे तो उसको एक्सप्रेशन की स्पेस मिलेगी। तभी हम कहते हैं बच्चों को सुनो, लिसन टू देम। हर चीज़ पे एग्री करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम स्पेस तो दे सकते हैं ना। जब मैं कहती हूँ कि पे
ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आगे जाके जब वो और रिलेशनशिप्स में होंगे, वहां पे अगर कोई पर्सन उनको इमोशनली या भगवान ना करे फिजिकली अब्यूज करेगा, तो वो उस रिलेशनशिप को टॉक्सिक देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही रिलेशनशिप अपने पेरेंट के साथ देखा है। तो वो बोलेंगे ऐसा ही होता है, एंड कितना वो अब्यूज ले लेंगे उसके अंदर। बाय द टाइम दे अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट राइट, कितना टाइम निकल चुका होगा। इट्स बिकॉज दैट्स द मीनिंग, दिस इज नॉर्मल फॉर मी। Hmm. This is बट वो how मुझे बहुत प्यार attachment करता है, पर loves. वो मुझे बहुत प्यार करती है। Huh, this is what attachment looks like. This is what love looks like. यस, They have a right over you. They can even physically violate you. They can emotionally abuse you. They can shut you down. They cannot be available. But foundation block तो love ही है, क्योंकि हमने वो घर पे ऐसा देखा प्यार है। देखा है. बच्चे बाहर रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं कि नहीं, ये भी समझ रहे हैं वो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं बाहर भी डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो बेसिकली आपका जो सेल्फ वर्थ है, कि आप अपने आप को कितना आंकते हैं, हाउ यू इवैल्यूएट योरसेल्फ इज आल्सो गेटिंग एस्टैब्लिश्ड एट दिस वेरी यंग एज. Yes, 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 yes. Because children are understanding, they're looking at us, you know, as a child, you said how the child sees the world. The child sees their parents and adults around them and see, am I a good child? Am I worthy? Am I loved? Am I important? So a parent who loves the child but is mostly instructing, correcting, because they're parenting. हमारा फोकस पेरेंटिंग पे इतना ज्यादा है कि हम कनेक्टिंग पे रह जाता है, वो बैलेंस नहीं हो रहा। तो एक बच्चा तो पूरा टाइम यही देख रहा है ना कि मुझे करेक्ट किया जा रहा है, मुझे दे समटाइम्स चिल्ड्रन फील दैट दे आर लव्ड बट दे आर नॉट लाइक्ड। सो हाउ विल द चाइल्ड? This is such a powerful thing that you have just said, that you are loved. You know that कहीं वो foundation emotion तो love का ही है. और फिर हमारा ये मूवीज और ग्लोरीफाई करना, आज मदर्स डे है, इस तरह के ओकेजन ग्लोरीफाई करना कि मदर्स का जेन्युइन लव होता है, जो होता भी है, राइट? बिल्कुल होता है। तो आपको पता है कि दे लव मी, बट यू आर नॉट श्योर वेदर दे लाइक मी और नॉट, एंड व्हाट शुड आई डू टू बी मोर लाइकेबल? दैट स्टार्ट्स एट अ वेरी अर्ली एज. एंड देन वी स्टार्ट प्लीजिंग देम। You want to be liked, you want approval. Every child is looking for approval in their own ways. Some children become people pleasers, some children start rebelling, but in their heart they just want to be feel connected with other people They want to feel belong, they want to feel accepted and appreciated, and understood. which are very basic human needs. Yes. If you talk about human needs, love and belongingness is the very, very basic need of a human, and survival also. Yes. That if I am in this place, if I'm in this house and I'm not loved or liked, how do I survive here? What should I need? What should I do? Do I need to please them? Do I need to score good marks? Do I need to not be friends with certain people? Do I need to be friends with certain people only? Do I not need to complain about certain people? What is it that I have to do कि मुझे ये लोग प्यार करें, मुझे एक्सेप्ट करें? और यहाँ से सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव की भी शुरुआत होती है, जहाँ आपने सेल्फ एस्टीम बोला। सो व्हेन दे फील दैट दे आर नॉट वर्दी ऑफ लव, then they are not able to love themselves enough. You know, we talk about self love, self worth with young adults, or with people who are in their 20s, or people who are going to therapy, or are into some sort of the journey within, so to speak, to understand, people who are taking initiative to understand their emotional health, their own inner world, where they understand their emotions, how they process things. In that space, we talk about self worth, self love, and all of that. सो आई एम सेइंग 20, 30, 40 में लोग ये बात कर रहे हैं. फॉर्मेशन तो आपका 5 साल की उम्र में हो गया है ना. इफ वी सी द स्टडीज, टिल द एज ऑफ 7, योर बिहेवियर, द वे यू विल बिहेव एज एन अडल्ट इन योर whatever number of years you have ahead of you, that is set at 7-year age, 7 years of age. A lot. A lot of it. A lot of it, right? So this is the psychology studies, those are telling us कि तो 0 to 7 years इतने crucial हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट में, and that is why I wanted to start this conversation with understanding a child's world, कि उस बच्चे की दुनिया में क्या हो रहा है. अगर आप अटैचमेंट दे रहे हो तो क्या हो रहा है, नहीं दे रहे हो तो क्या हो रहा है, डिसिप्लिन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है. तो यू हैव हेल्प मी अंडरस्टैंड कि किस तरह से चाइल्ड अपनी एक तरह से एक साइकोलॉजी या एक तरह से एक समझ बनाना शुरू हो जाता है अबाउट द वर्ल्ड, और वहां से वो फील करना शुरू हो जाता है. डायलॉग शुरू हो जाता है शोभा। आप बिल्कुल हमेशा रोते रहते हो,
आप क्यों बार-बार इस तरह से बिहेव करते हो? आप समझते क्यों नहीं हो? बार-बार आप ये गलती क्यों कर रहे हो? मैं आपको कितनी बार बोल रही हूँ उसको टू को टू की तरह लिखो, इस तरह से क्यों लिख रहे हो? आप बार-बार गलती क्यों कर रहे हो? हम मिस्टेक्स पे कैसे फ़ोकस कर रहे हैं उनकी? हम उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को किस तरह से फ़ोकस कर रहे हैं? इन सब चीज़ों से एक इनर डायलॉग शुरू हो रहा है। अब आप एज़ एन एडल्ट खुद को देखिए कि जब आप कोई गलती करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? यार मैं ये गलती कैसे कर सकती थी? Are you being hard on yourself? Chances are your parents were hard on you, and your parents were hard on themselves also. So it is coming from there. The dialogues that are there inside are the dialogues that you have heard from adults around you as a child. This I had heard or read somewhere that we are the victims of victims. Yes. हम ऐसा नहीं कि अपने पेरेंट्स को जाके बोले कि तुमने मुझे बचपन में ही ढंग से हैंडल नहीं किया, खराब कर दिया और अब मैं अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक इस कन्वर्सेशन में कोई मीनिंग नहीं है। द पॉइंट इज दैट हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर आवरसेल्व्स एज पेरेंट्स एंड आवर किड्स। From here, Ishina, I want to evolve the conversation to setting boundaries now. One of the key challenges that we as adults face is हम में से बहुत सारे लोग, a large percentage of us are unclear about our boundaries. हमें ना नहीं कहना आता, हमें पता नहीं कि किस चीज़ के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए। तो चाइल्डहुड में कैसे हम एक बच्चे को सिखाएँ टू सेट देयर बाउंड्रीज़? अच्छा देखो, दो तरह से बाउंड्रीज की बात करते हैं। एक हम चिल्ड्रन कैन set personal boundaries for themselves so that they keep themselves safe, and the other is how parents can keep boundaries for children. So when I understand two kinds of boundaries. The first is by giving them respect, by showing them that their personal bound, by respecting their no when they can. If they say that, even if a child says कि मैंने और नहीं खाना, हम कितने पेरेंट्स हैं जो कहते हैं क्यों थोड़ा सा और खाओ? किसकी बॉडी है? किसको पता चल रहा है आज मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, मेरा पेट भर गया है कि नहीं? यहाँ से हम लोग उनकी बाउंड्री सेट करना शुरू हो रहे हैं। रिस्पेक्ट देयर नो। अगर वो कहते हैं कि आजकल कितनी बात होती है कि बड़े लोग बच्चों को हक करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर बच्चा मना करते हैं तो उनकी बात सुनो, है ना? दिस इज़ फॉर देम टू लेट देम नो कि अब्यूज़ क्या होता है एंड यू कैन से नो। ये सब इम्पोर्टेंट है। टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट यू कैन से नो। पीपल प्लीजर नहीं बनाना है ना हमने बच्चों को। तो मम्मा जब हम लोग कहीं जाते हैं, हम बोलते हैं कि इनको हाय करो, हाय क्यों नहीं कर रहे हो? देखो अंकल को बुरा लग रहा है, आप हाय भी नहीं कर रहे हो। हम अंकल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम बच्चे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं? क्या हम उसको बोल सकते हैं कि क्योंकि 4 साल का ही बच्चा है ना, 6 साल का ही बच्चा है ना, बच्चे तो बच्चों की देयर इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन एन एडल्ट एंड अ चाइल्ड? वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ डिफरेंस। बट जब हम 4 साल के बच्चे को बोलते हैं अंकल को हाय करो और वो नहीं करता है, तो हम उसको जज करने लग जाते हैं। हम उसकी डेवलपमेंटल स्टेज को रिस्पेक्ट करें। 4 साल का बच्चा है, हो सकता है कि 40 साल पे तो नहीं करेगा ना ऐसा, तब तो हाय बोलेगा ना। उसको टाइम दो, उसको स्पेस दो, बच्चे अपनी बाउंड्रीज समझेंगे। ठीक है बेटा, आप हाय बोल देना, अभी जब आपका मन करेगा ना तब बोल देना। जब आप ऐसे बोलते हो तो कभी कभी बच्चे जल्दी हाय बोलते हैं, बिकॉज दे डोंट फील। जैसे आप पुश करते हो उनको भी एंग्जाइटी होती है। सोशल एंग्जाइटी भी एक स्टेज है। लेट देम गेट अक्रॉस इट। सो दैट्स हाउ वी कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड बाउंड्रीज, by respecting their boundaries. So what you've spoken about is a child setting their own boundaries, कि उनको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। Another way that you were talking about is parents setting boundaries for their kids. Now I'm getting to अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ डिसिप्लिन एंड डेप्थ, क्योंकि ये बहुत चैलेंज आता है पेरेंट्स को कि बच्चों को हम डिसिप्लिन कैसे करें। अगर हम उनको चीज़ें मना कर देते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो वो हर्ट हो जाते हैं, उनके इमोशंस, वो भी सही नहीं है। अगर हम उनको सब चीज़ें दिला दें, विच इज़ द पेरेंटिंग स्टाइल दीज डेज आई सी हैज़ बीन इट्स बीन प्रैक्टिस्ड इन मॉडर्न होम्स, अर्बन होम्स में, जहाँ दोनों पेरेंट्स कमा रहे हैं, अच्छी सैलरी है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, टाइम कम हो गया है, तो दे फील कि हम तो जी इनको सब कुछ अलाउ करते हैं। इसको जो हॉबी क्लास है, 10-10 हॉबी क्लास बच्चा जा रहा है, उसको जो पसंद है वो एक्सप्लोर कर रहा है, जो उसको गेम्स, टीवी जो करना है, एवरी एक्सपोज़र दे हैव, ट्रैवल कर रहा है बच्चा। छोटे-छोटे 1.5-2 महीने के बच्चे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करके आ गए, मतलब दोज़ आर आल्सो द पॉसिबिलिटीज़ इन द टाइम्स दैट वी आर लिविंग टुडे, राइट? सो हाउ डू यू डिसिप्लिन योर चाइल्ड इन दिस एनवायरनमेंट? Disciplining or creating boundaries for children is a very very important part of parenting. ये आजकल जो जेंटल पेरेंटिंग, काम पेरेंटिंग, ये जो बातें हो रही हैं ना, उससे पेरेंट्स कंफ्यूज हो गए एक्चुअली। उनको लगता है कि अगर हम बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करेंगे या बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, बस उनके साथ कामली बात करेंगे, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो सब कुछ ठीक है। बच्चों के दोस्त बनो, ये भी तो एक हाँ, कन्वर्सेशन है कि आप बच्चों के बच्चों के दोस्त दोस्त बन। बनो, बच्चों के दोस्त, पर जहाँ पेरेंट बनने की ज़रूरत है वहाँ पेरेंट भी बनना पड़ेगा। तो बाउंड्रीज बच्चों की नीड है। हम बेसिक नीड्स की बात करते हैं ना कि बच्चों को एप्रिसिएशन चाहिए, बच्चों को कनेक्शन चाहिए,
यहाँ पे बच्चों की नीड है एक बेसिक बाउंड्रीज। अगर हम बच्चों को शुरू से बाउंड्रीज नहीं देंगे तो वो आगे जाके कैसे बाउंड्रीज समझेंगे? एज आई सेड, वो नेटवर्क बन रहा है ब्रेन में। अगर आज उनको नहीं समझ आएगा कि बच्चों को ना सुनने की आदत ही नहीं होगी, तो आगे जाके ना सुनेंगे तो कैसे अफेक्ट करेगा उनको खुद ही? इट्स लॉजिकल। दे नीड टू फेस। बच्चे रेजिलियंट कैसे बनते हैं? डिसकंफर्ट से रेजिलियंट बनते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है? हमको एज अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज लगानी है। हमें बच्चों को समझना भी है, रियलिस्टिक बाउंड्रीज लगानी है। Like, give me some examples of setting boundaries for your children. फॉर एग्जाम्पल, एज सिंपल एज, एक तो एज अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज मतलब अ 4-year-old इज गोइंग टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। दे कैन नॉट सिट एट वन प्लेस। अब आप बार बार बच्चे को बोल रहे हो एक जगह पे नहीं बैठते, आप एक जगह पे नहीं बैठते, ये 10 साल पे बैठ ही जाएगा ना एक जगह पे। पर हम बच्चे को एक जगह पे बैठने के लिए बोल ही क्यों रहे हैं? हम बच्चे को क्यों नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे बाउंड्री गड़बड़ कर रही है। बाउंड्रीज मतलब गिविंग देम अ पेरिफेरी, कि बेटा किसी को हम मार नहीं सकते, किसी को हम हर्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे ये चीज नहीं कर सकते, उसके बीच में आपको जो करना है आप कर सकते हो। गिविंग देम स्पेस बाय गिविंग देम बाउंड्रीज। बाउंड्रीज उनको चाहिए, नहीं तो उनको ये नहीं पता कहाँ रुकना है। फिर आप बोलोगे कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ रुकना है। एक और पार्ट है बाउंड्रीज लगाने का, कि हम बाउंड्रीज लगा कैसे रहे हैं। हम गुस्सा करके बाउंड्रीज लगा रहे हैं? क्या हमें गुस्सा करने की ज़रूरत है बाउंड्रीज लगाने के लिए? हमें बच्चे को ना करने के लिए गुस्सा करने की ज़रूरत है क्या? एक छोटे बच्चे को आइसक्रीम का ना करने के लिए, एक बड़े बच्चे को किसी पीएस का ना करने के लिए हम डरते हैं कि ना करेंगे तो बच्चा गुस्सा होएगा। तो हम लेकिन पहले से ही गुस्सा हो जाते हैं कि उसको मौका ना मिले गुस्सा होने का या डर जाए। हमको लगता है ना करने के लिए गुस्सा होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का रिएक्शन आएगा या बच्चे का रिएक्शन आ रहा है। हमें ना करते हुए काम रहना सीखना है कि बेटा नहीं हो सकता। अब जब हम किसी को ना करेंगे तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको कोई ना करता है तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? तो बच्चे को बुरा तो लगेगा। आप एक 3 साल के बच्चे को बोलेंगे आइसक्रीम नहीं मिल सकती बेटा, अभी उसने अभी फ्रीजर में देखी है, तो वो तो लेट जाएगा जमीन पे कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। अब यहाँ पे हम उसके इमोशन से डर जाएंगे और बोलेंगे आइसक्रीम ले लो, तो बच्चे को लगेगा यही तरीका है चीजें लेने का। हम बोलते हैं बच्चे हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। बच्चे मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, बच्चे हमें समझ रहे हैं। बच्चे समझ रहे हैं कि क्या चीज़ वर्क करती है। मेरा ऐसे ज़मीन पे लेट के रोना वर्क करता है, मेरा इस तरह से ज़िद करना वर्क करता है। बड़े बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो कहेंगे कि इतना आर्ग्यू करता है, इतना आर्ग्यू करता है, फिर देना ही पड़ता है। वो भी समझ रहे हैं, उन्होंने भी इतने सालों में समझा आर्ग्यू करने से मिलता है। इट्स नॉट दैट दे आर मैनिपुलेटिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग अस। यू स्टिक टू योर बाउंड्री। यू से नहीं मिल सकता। टैंट्रम्स को हैंडल करो, टैंट्रम हैंडल हो सकते हैं। टैंट्रम्स कुछ भी नहीं है, इमोशन से निकल जाएंगे बच्चों की बॉडी से। यू बी काम, डीप ब्रीथ करो। ट्रिगर हो सकता है आपको। इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट सिचुएशन टू बी विद अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ टैंट्रम, बट कैन वी जस्ट अप्रोच इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ काम? बिकॉज हमारे पास रेगुलेटर्स हैं, हमें फिल्टर कर, हमारे पास वो फिल्टर है। हमको भी गुस्सा आ रहा है, हम भी चिल्ला रहे हैं, बच्चे को गुस्सा आ रहा है, वो भी रो रहा है। अब यहाँ बच्चे और बड़े में कोई फर्क ही नहीं है। नाउ बोथ आर चिल्ड्रन, both are not using their prefrontal cortex. So handle it. Be calm, let the emotion pass, connect with the emotion. मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, अच्छा आइसक्रीम नहीं मिल रही इसलिए, ओहो, निकलने दो, इमोशन निकल जाते हैं। फिर बच्चे को पता चलेगा कि ना भी सुननी पड़ती है। शायद अगला टैंट्रम कम होगा, क्योंकि उनको पता है ये वर्क नहीं करता। ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों के टैंट्रम से डर जाते हैं, I मतलब think उनके इमोशन से डर जाते हैं, वो अपने भी इमोशन से डर जाते हैं। हमें डेटा से पता चला है दैट 92% ऑफ आवर लिसनर्स, आप लोग जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो हमारे अब तक सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। 92% एक बहुत बड़ा नंबर है। सो आई वुड लाइक टू encourage you to subscribe to the channel, like, comment and share with your friends and family so that YouTube algorithms को समझ आए कि ये चैनल कुछ अच्छा काम कर रहा है, and it helps us spread this beautiful message of the journey within to a wider audience. Now, let's get into today's episode. Ishina, they say that happy parents make happy children. But the reality is that how many of us are happy people? We are struggling at our jobs, we are having relationship issues, हमारे अपने फैमिली में 10 तरह के इश्यूज हैं, हमारे खुद के सेल्फ डिसिप्लिन को लेके इश्यूज है, तो हम खुद इतने ट्रबल्ड हैं, वी आर नॉट हैप्पी बाय आवर नेचर। तो फिर हम कैसे हैप्पी चिल्ड्रंस को रेज करेंगे? बहुत अच्छी बात बोली आपने, मुझे बहुत पसंद आई। जिस तरह से हम कहते हैं बच्चों को रेजिलिएंट होना चाहिए, है ना? हैप्पी के साथ रेजिलिएंट होना चाहिए, तभी हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि वी कांट कंट्रोल एवरीथिंग आउटसाइड। रेजिलियंस विल गिव अस हैप्पीनेस।
बट हम कितने रेजिलियंट हैं? Children are even learning resilience by observing us. So when things do not go according to you, what do? Mostly children are even getting angry like parents. They're learning to lie from their parents. They are looking at us, watching us all the time. हमें लगता है मैं बच्चों को सिखाना है, बच्चे ऑलरेडी सीख रहे हैं, सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट वो सीख रहे हैं ये देख के कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं उससे नहीं. They are watching us what we are doing, not by only listening to us. अच्छा, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो, लेकिन अगर हम वो हमें ये काम करते हुए देखता है, जैसे अगर हम घर में कुछ कर रहे हैं, एकदम से फ़ोन आ गया, हमने कहा हाँ, मीटिंग चल रही है, बाद में बात करती हूँ, तो दे आर लिसनिंग टू ऑल दिस एंड दे आर ऑब्जर्विंग कि हाँ, इन्होंने तो ऐसे झूठ बोल दिया, मीटिंग तो नहीं चल रही, बिल्कुल. या इन्होंने कह दिया कि घर पे कोई आया हुआ है, बाद में बात करती हूँ, घर पे कोई आया तो नहीं हुआ, तो इन्होंने तो झूठ बोल दिया है, तो मतलब इट इज़ ओके, सर्टेन सिचुएशन में यू कैन गेट अवे विद अ लाई. सो चिल्ड्रन आर नॉट व्हाट यू आर टीचिंग देम बाय योर वर्ड्स कि झूठ मत बोलो, प्यार करो, गुस्सा मत करो, लेकिन अगर आप वैसे हो रहे हो, तो वो आपके बिहेवियर को पकड़ते हैं, ना कि आपके वर्ड्स को. बिल्कुल, बिल्कुल. एक बच्चा है, अगर वो ये देखता है कि जब मेरे पेरेंट के हिसाब से चीज़ नहीं होती है, तो वो इस तरह से बिहेव करता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है. तो जब मेरे हिसाब से चीज़ नहीं होगी, तो मैं भी इसी तरह से बिहेव करूँगा. समटाइम्स पेरेंट्स कम टू मी एंड टेल मी कि बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल वो वर्ड्स यूज़ कर रहा है जो हम इसके साथ करते हैं. हम गुस्सा करते हैं तो हमें उल्टा गुस्सा करता है. एंड पेरेंट्स आर गेटिंग टेकन अबैक. कि ये कैसे हो रहा ये है? कैसे हो रहा है? Our behavior has so much influence over our children's behavior. We can't even imagine how much. मेरी एक फ्रेंड थी, वो कहती थी अगर तुम्हें किसी को समझना है ना, तो उनके घर पे बच्चे कैसे हैं और कुत्ते कैसे हैं, उनका क्या बिहेवियर है, वो देख लो. अगर कुत्ता भी उनका पेट बहुत अग्रेसिव है, बहुत वाइल्ड है, या बच्चा भी वैसा है, तो द चांसेस आर दैट द पेरेंट और द पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक दैट. तो मुझे उस टाइम पे ये बात थोड़ी कम समझ में आती थी, बट एज़ आई एम ग्रोइंग अप, आई एम रियलाइज़िंग दैट इज़ सो ट्रू, एंड आई हैव सीन दैट सम ऑफ माय फ्रेंड्स जैसे, यार हमारा पेट तो बड़ा वायलेंट है, ये तो लोगों पे झपटने शुरू हो जाता है, ये तो ऐसे करने शुरू हो जाता है, लिफ्ट में इसको नहीं ले जा सकते, मुझे रोज़ 7 फ्लोर चल के नीचे जाना पड़ता है बिकॉज़ ही इज़ लाइक दिस. But then when because I know them, right? I know them as people. Then I tell them that you see how you are. You are also so loud as a person. So कहीं ना कहीं ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारी लाइफ में, these are also a window to see कि हम खुद कैसे हैं. मैंने इसमें एक बात ऐड करूँगी कि हम ना अग्रेशन, लाउड, एंगर, ये तो हम लोगों में देख लेते हैं पेरेंट्स में जब पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं. बट समटाइम्स सम चिल्ड्रन माइट लुक अग्रेसिव और एंग्री, बट देयर पेरेंट माइट नॉट बी एज एंग्री. यहाँ पे होता है समटाइम्स पेरेंट्स आर वेरी एंग्शियस. They might not look like that from the outside, but inside they are not calm. They get very uneasy. तो वो बच्चों की तरफ, वो भी बच्चे हमारी वाइब्रेशन से चल रहे हैं. एक बच्चा है, उसका टैंट्रम चल रहा है, अगर आप एंग्शियस हो जाओगे, आप गुस्सा नहीं कर रहे हो उस आप टैंट्रम बाहर पे, से काम दिखा रहे लेकिन हो. हाँ, काम मतलब हमको लगता है काम मतलब मुंह बंद कर लो. हम्म. तो पेरेंट्स कहते हैं मैंने कुछ नहीं बोला, मैं काम रह रही थी, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था, इतनी सिचुएशन खराब हो गई. तो मैं कभी कभी उनसे पूछती हूँ कि आपकी बॉडी कैसी थी, आप जब काम थे तो आप सोच क्या रहे थे? हाँ, मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, मैं क्या करूँ? ओह माय गॉड! बॉडी पूरी क्लेंच हो रही है और सब कुछ, और अंदर से, और 5 मिनट काम रहने के बाद एकदम से गुस्सा निकल आता है, या आप फटाफट बोलोगे अच्छा ले ले प्लीज़, ऐसे मत कर, क्योंकि आप एंग्शियस हो. तो इवन अराउंड एन एंग्शियस एडल्ट, अगर एक बच्चे का नेचर ही थोड़ा-सा अग्रेसिव साइड पे जाने का है, तो वो उस तरफ चला जाएगा. ये नर्चर और नेचर दोनों साथ चल रहा है ना. तो एक एंग्शियस पेरेंट का बच्चा अग्रेसिव होगा, आपको लगेगा ये पेरेंट तो नहीं कुछ इस तरह से करता, लेकिन एंग्जाइटी है. Children feel unsafe when the parent is not calm. Children feel safer when there is a calm adult around them. And they can sense your bodily sensations, your Yes. vibrations, the aura you create around yourself. As an emotional intelligence and mindset coach, जब मेरे पास clients आते हैं, in fact I was working with somebody on their relationship, तो उनका सबसे बड़ा ये था कि यार ये चिल्लाते बहुत है मुझ पर, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कहती हूँ, मैं तो चुप रहती हूँ. But that is also a sign of you being cold to them. You shutting them down, you invalidating them, you're not listening to them. आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन आपने उनको ये दिखा दिया कि मैं तुम्हारी सुन भी नहीं रही हूँ, या मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, या तो तुम जो कह रहे हो तुम तो ऐसे ही करते हो, यही तुम्हारा, यू हैव रिजाइंड ऑन द पर्सन. वाइब्रेशन तो दे ही रहे हो ना, तो आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई, सब कम्युनिकेट कर रही हैं. वाइब्रेशन जा रही है पूरी उनकी उस तरफ. टाइम पे आपने उन पे रिजाइन कर दिया है, और आपकी वाइब्रेशन और एनर्जी वो ही है उस इंसान के लिए, अपने पार्टनर के लिए, और आप
एंड में जब टेबल पे टटोलने आते बातें, देखो इसने तो चार्जर भी उठा के फेंक दिया था, इसने तो गुस्से में 2 लाइनें भी बोल दी सब थी, register कर इसने लिया। तो फ़ोन भी कर दिया था। मैं देखो मैं चुपचाप बैठ के सहती रही, मैंने कुछ नहीं बोला, बट आपकी बॉडी में इतना गुस्सा था, आपको ऐसा था कि बस यू नो ऑल ऑफ दैट। सो ऑल ऑफ दिस इज़ आल्सो गेटिंग ट्रांसफर्ड, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि यू आर सेंडिंग आउट अ calm and peaceful energy, you are calm within, and yet all of this disruption is happening. So it is very important for us to notice कि हम क्या कोल्ड हो रहे हैं और क्या काम हो रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। यही तो बात है ना शोभा, तभी तो आपके पॉडकास्ट का नाम जर्नी विद इन है। क्योंकि हम एक्सटर्नल बहुत देख रहे हैं, हम अपने अंदर नहीं जा रहे। हमारी सोच क्या चल रही है, व्हाट आर वी थिंकिंग। देखो, व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल फॉर एनी पेरेंट टू सी अ चाइल्ड थ्रोइंग अ टैंट्रम, और स्पेशली इफ अ चाइल्ड इज बीइंग रूड, हमें अपनी पेरेंटिंग पे डाउट होता है। सो अ पेरेंट हु इज गेटिंग एंग्री, वो सोच क्या रहा है? दैट पेरेंट इज थिंकिंग, यार हाउ कैन माई चाइल्ड डू दिस टू मी? I'm doing everything for my child, and still this is what I deserve, this is what I'm getting, even if they're quiet. I have left all my job only to take care of my child. मैं अपना करियर नहीं बना रही, मैं कुछ नहीं कर रही, और फिर भी देखो ये कैसे बात कर रहा है कि इसको रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरी। अगर ये सोच चल रही है तो ये वाइब्रेशन जा रही You are attaching embarrassment and shame with your child's behavior if he है is टू योर not सेल्फ। आप regulated. पर्सनली ले रहे हो ना, आप अपने ऊपर ले रहे हो। आप ये नहीं समझ रहे हो कि एक बच्चा अगर आर्ग्यू कर रहा है तो वो क्या फील कर रहा है, और पर्सनली ले रहे हो मतलब आप शायद अपने पेरेंटिंग को भी डाउट कर रहे हो। आपको क्या लगता है मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, मेरा बच्चा कभी रूड नहीं होएगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा? वो तो बच्चा ही है। ये स्टेजेस हैं। लाइंग इज अ स्टेज। चिल्ड्रन विल एक्सपेरिमेंट विद लाइंग एट सम एज। आप प्रिपेयर्ड रहो। इट पेरेंटिंग एक्सपर्ट या कॉन्शियस पेरेंटिंग का मीनिंग ये होता है हमारा क्या रिस्पॉन्स जा रहा है, क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स उनकी लाइंग पे होगा, उनके अग्रेशन पे होगा, वो उस पर डिपेंड करता है अब ये लाइंग और अग्रेशन किस डायरेक्शन में जाएगा। सो नॉट एवरीथिंग दैट्स कमिंग टू यू इज बिकॉज ऑफ यू, so don't take it personally, but now how you will handle it defines how things will go. हमें उनको तो वैसा-वैसा बनाना है जैसा-जैसा हम चाहते हैं, बट खुद को वैसा-वैसा बनाने में बहुत काम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, तो हम खुद पे थोड़ा कम काम करते हैं एज़ अ पेरेंट। Every parent says कि मेरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि एक्चुअली आपको अपने बच्चे के लिए चेंज होना ही पड़ेगा। एंड स्पेशली जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती है ना, वो आपकी ज़्यादातर बच्चों में कभी होती हैं आपको चेंज करने के लिए। मुझे मेस बिल्कुल नहीं पसंद, तो मेरा बच्चा बहुत मेसी है। अब आपको रेजिलियंस लानी है। What are the 3 universal laws of parenting that you would like to give to anybody who is planning a child or has a child? Universal laws, huh? One thing I will say is that connection. Connection is the base of parenting. आप अपने कनेक्शन और रिलेशनशिप पे वर्क कीजिए, और ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए ट्रू है, बट इट इज़ वेरी ट्रू फॉर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन द मोस्ट। हु हैज़ द बेस्ट इंटेंशंस फॉर चिल्ड्रन? Do you think even being a parenting expert, talking to a parent in a personal session, I have the best intention for their child? They have it. So work on that relationship, because that is going to help you in influencing children's decisions. We really cannot control children. If you're trying to control children by anger, hitting them, lots of parents are doing it. If you think that children are listening to you because of that and they're becoming something because of that, ठीक है, आपको दिख रहा है वो, ये सब short term है. In the long term, the day your child decides that I'm not going to listen to you, no matter how angry you get, I'll still not do what you're saying, no matter how much you hit me, I'll still do what I want to do, then what will you do? Ultimately, and then with that, if you think you're, because some children, they are uh, made in a way where all these techniques will seem to be working a lot, because they are people pleasers, because they are more submissive, they will rebel less. तो ऐसा लगेगा कि उन पे देखो, मैं थप्पड़ लगाती हूँ तो देखो आज वो कहाँ पहुँच गई, कि मैं इतना गुस्सा करती हूँ तो देखो कहाँ पहुँच गए। लेकिन उसके साथ वो जो एंग्जाइटी जा रही है, जो स्ट्रेस जा रहा है, जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग खुद की होनी चाहिए वो पहुँच नहीं रही, उनकी मेंटल हेल्थ, सब कुछ ये निकलेगा ना बाद में। तो अल्टीमेटली अगर हमें अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करना है कि वो, हम उनको जो सिखाना चाहते हैं वो तभी पहुँचेगा जब हम उनसे कनेक्शन बिल्ड करेंगे। That's what gentle parenting and parenting that we talk about is talking about. Connection. That's the base of parenting. So that's the first law. The second thing is, whenever you feel that your child is behaving in a certain way that you are not understanding, go within. Because our, just understand कि ये कहाँ से आ रहा है. Go under the behavior, जिसके अंदर कभी कभी हमारा ही behavior होता है. Sometimes we think that the child is throwing a lot of tantrums, जबकि सुबह से हम ही उनके साथ impatient हो रहे हैं.
सो यू आर बीइंग सो इम्पेशेंट दैट अल्टीमेटली द चाइल्ड इज फीलिंग सो, बच्चों के पास ना फिल्टर नहीं होता, वट एवर दे फील इट कम्स आउट इन देयर बिहेवियर इज द वे दे आर कम्युनिकेटिंग टू अस दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड। एटलीस्ट टिल अ सर्टेन एज तो यही होता है। वैसे तो हम सबका ही है, अगर हम लोग ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं तो इट्स बिकॉज वी आर फीलिंग समथिंग। हाँ, हम खुद को समझ सकते हैं ज्यादा, तो हम उसको रेगुलेट कर लेते हैं, हम या मेरी सोशल सेटिंग का कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ मैं नहीं दिखा नहीं दिखा सकते सकते, किसी भी रीजन से। कई लोग बड़े फ्रस्ट्रेशन में लड़ झगड़ के ऑफिस में आते हैं, लेकिन ऑफिस में आके काम तो करना काम ही है। करना है, लेकिन बच्चों में तो रेगुलेटर नहीं है ना मैं शिल्पा। वही बात कर रही हूँ कि हाँ, तो अब उनका बिहेवियर ही हमें बताएगा कि अंदर क्या चल रहा है। तो क्यूरियस हो जाओ, जब भी आपका बच्चा रूड भी हो रहा है ना, तो पर्सनली लेने की बजाय क्या करना है, ये कहाँ से आ रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। कभी कभी बच्चों के स्कूल में कुछ हो रहा हो सकता है आपका बच्चा आके आपको नहीं बताएगा कि बुलिंग हो रही है, पर उसका घर का बिहेवियर, अग्रेशन या उसका आर्ग्यूमेंट्स या उसका चुप रहना, वो आपको लगेगा कि ये क्या बिहेवियर है, पर ये कहीं से आ रहा है। शायद आप उसके बिहेवियर को क्यूरियसली देखोगे तो आप उसके एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुंच जाओगे और वो बुलिंग तक पहुंच जाओगे जो बच्चा आपसे शेयर नहीं कर पा रहा। बिहेवियर इज द वे दे कम्युनिकेट। सो द सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड इज that look at, go under the behavior and see that what you are doing, क्यूरियोसिटी। curiosity and being open to seeing yourself बहुत ज़रूरी है। कि मैं ज़्यादा गुस्सा कर रही हूँ क्या, कि मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ क्या, कि मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ क्या। बच्चा पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, आप कैसे पढ़ाते हो? आप बहुत ज़्यादा पुश करते हो, आप बहुत गुस्सा करते हो पढ़ाई के टाइम पे, आप बहुत एंग्शियस हो जाते हो। आपकी बॉडी कैसी होती है जब वो पढ़ रहा होता है, ठीक से करो बेटा, क्या कर रहे हो आप, कितना वो कर रहे हो, और हम किस तरह से कितनी बिहेव बार कर रब रहे हैं। करोगे, हाँ, ढंग से लिखो। और बच्चों के साथ रियलिस्टिक हो। अगर एक बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी राइटिंग 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 बच्चा राइट ही नहीं करना चाहता, अब हम उसको ब्लेम कर रहे हैं कि बिल्कुल ये राइट ही नहीं करना चाहता, इसने तो गिव अप ही कर दिया है। हमने किस तरह से एनकरेज किया, क्या हमने स्ट्रेस, हम बोलते हैं बच्चा कॉन्फिडेंट ही नहीं है, कॉन्फिडेंट ही नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारा क्या रोल है उसके अंदर, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कॉन्फिडेंट नहीं है नहीं है नहीं है बोल के ही आधा कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं। ये सब मतलब मैं देख रही हूँ आपके साथ इस कॉन्वर्जेशन में कि बेसलाइन से ही गड़बड़ चालू है। देखो आप कितने कितने थेरेपिस्ट हैं, कितने हम थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, या वैसे ही आजकल तो द बेस्ट पार्ट है सब ओपन हो गए हैं, दे आर गोइंग टू थेरेपीज इफ दे आर नॉट फीलिंग मेंटली स्टेबल और एनीथिंग। लेकिन सब कुछ चाइल्डहुड पे आ ही जाता है, तभी हम चाइल्डहुड ट्रॉमास बोल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट बहुत कुछ वहां से हो रहा है। एज आई सेड, वायरिंग ब्रेन की हुई हाँ, हुई है। जैसे हम बात कर रहे थे 7 इयर्स तक आपका बिहेवियर सेट हो जाता है। वन ऑफ माय मेंटर्स ही वाज टेलिंग मी दैट डोंट सी हिम एज अ 32-year-old मैन बिहेविंग द वे ही इज, see him as a 7-year-old child behaving the way he is, and then you will see that it's not wrong. The behavior is not wrong. Learn the underlying message क्या है, वो behavior क्यों है, क्योंकि उसमें जो भी वो प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसमें आपके लिए भी काम है करने के लिए। उसको देखो, ऑब्जेक्टिवली देखो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी ये बात सुन के। ये सब मेरे कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो मैंने थ्रू मेंटरिंग, अब क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ब्रेक थ्रूज क्रिएट कर पाए हैं, तो मैं चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू बाकी लोग भी अगर वो कर पाएँ। मुझे मेंटरिंग से इतना फ़ायदा हुआ है, अगर हम भी आगे किसी की लाइफ में कुछ ऐड कर पाएँ, मुझे लगता है हम ना ये जो कन्वर्सेशन को इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट है, ऐसे थोड़ी होता है। देखो डिफिकल्टीज तो आएंगी, लेकिन लाइफ बाय इट्स इट्स नेचर डिफ़िकल्ट नहीं है। हम स्टक हो जाते हैं जब हम सोचते हैं डिफिकल्ट है। जब जब ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट जरूरी भी है, हुँ, तभी हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों को हर चीज के लिए हाँ मत करो, उनको ना सुनने की आदत होनी चाहिए, कभी कभी चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं होगी इस बात की आदत होनी चाहिए। कभी कभी वो किसी सोशल सेटिंग में जाएंगे, वो अनकंफर्टेबल होंगे, स्कूल्स जाते हैं, कभी कभी कोई क्लास जाते हैं, उनको नहीं वहाँ मजा आ रहा होता, पर हम फिर भी वहाँ बोलते हैं, जब तक कि इट्स नॉट डेट्रीमेंटली अफेक्टिंग द चाइल्ड, हम कहेंगे नहीं बेटा यू विल हैव टू गो देयर। ये डिसिप्लिन में आ रहा है सारा, ये सब हम उनके लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं कि बेटा नहीं, वो क्लास में जाना है, इस मंथ के लिए तो पूरा जाना ही है, चाहे वो कितना भी मना करे। हम बाउंड्री सेट करेंगे, कनेक्शन के थ्रू करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू करेंगे, पर हम वो एक बाउंड्री सेट करेंगे एज कामली फर्मली एंड बीइंग काइंड सबके साथ। यहाँ पे बच्चे रेजिलियंस सीख रहे हैं, यहाँ पे वो डिस्कम्फर्ट से ग्रोथ हो रही है। तो एज ह्यूमन बींग्स हम लोग लाइफ में ग्रो तभी करते हैं जब हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कंफर्ट में कौन ग्रो करना चाहता है, वो सब ऐसे ही सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। इवन स्पिरिचुअलिटी स्ट्राइक तब होती है जब हम डिस्कम्फर्ट के थ्रू जाते हैं कि यार नहीं, कुछ ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तब हम ग्रोथ मिलती है। आपको भी ग्रोथ तभी मिली होगी जब आपको लगा होगा आई एम नॉट, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, आई एम नॉट फीलिंग गुड। नॉट फीलिंग गुड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बट आप
स्टक हो रहे हो वहाँ पे, क्या वहाँ से ग्रो कर रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? आपका ग्रोथ माइंडसेट है कि नहीं है? And Hmm. maybe as a coach, this is what you are also saying, that a coach can help you in having that growth mindset and moving on. हाँ, उसके लिए मतलब आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा और ये बिलीव करना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। Yes. एक जो हमने इस कन्वर्सेशन को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया ना कि लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ डिफिकल्ट है। लाइफ डिफिकल्ट नहीं है, लाइफ में डिफिकल्टी है Yeah. और That's वो ऐसे beautiful. फेजेस में आएगी और आती ही रहेगी। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट दैट इज नॉट द होल ऑफ लाइफ। व्हेन यू स्टार्ट सीइंग इट एज दैट, तो आपका डिफिकल्टी के साथ ना रिश्ता अच्छा बनने लगता है। हमारा डिफिकल्टी से क्या रिश्ता है? नहीं नहीं, ये नहीं आनी चाहिए। हम अपना बेस्ट करते हैं रोज अपनी लाइफ में कि मेरी डिफिकल्टी नहीं आनी Focus चाहिए। तो difficulty ही है ना? हम रोज नौकरी में अच्छा करेंगे, डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए कि जॉबलेस ना हो जाऊं। हम लोग रोज अपनी डाइट में अच्छा करेंगे, डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए कि मेरा न्यूट्रिशन खराब ना हो जाए। हम हर चीज में करने की आप देख रहे मोटिवेशन हो यही है कि डिफिकल्टी ना आए। डर कितना है? हाँ, नेगेटिविटी से, फियर से, डिफिकल्टी से आप अप्रोच कर रहे हो तो आपका रिलेशनशिप विद डिस्कम्फर्ट एंड डिफिकल्टी कैसे आना नहीं चाहिए। और जब वो डिस्कम्फर्ट इनएविटेबल है आपकी लाइफ में और आएगा ही आएगा, एक्सपीरियंस के थ्रू, एक हार्ट ब्रेक के थ्रू, एक जॉब लॉस के थ्रू, एक किसी की डेथ के थ्रू, तो आपको लगता है अरे ये तो मैं रेजिस्ट करता आया हूँ, मेरा तो इसका रिश्ता ऐसा है। तो वन हैज टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप विद डिफिकल्टी। ये मैं बार बार बोलती हूँ, नो प्लीज इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद बोर्डम। बच्चे आजकल के छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे, दे सेइंग आई एम बोर्ड। यू नो, आई डोंट हैव किड्स, बट मेरे फ्रेंड्स के बच्चे कभी मेरे घर आते हैं, 2.5-3 साल के बच्चे, दे आर गेटिंग बोर्ड। आई एम लाइक व्हाट इज इट? एंड दैट इज वेयर योर रिलेशनशिप विद बोर्डम इज कि आई एम बोर्ड। बोर्ड होना नहीं चाहिए। क्योंकि कांस्टेंट एंटरटेनमेंट, एक तो पेरेंट्स बहुत प्रेशर लेते हैं। Another parenting mistake I would say is that we are trying to solve everything for children. हमें लगता है हम पेरेंट हैं, हमें solutions देने पड़ेंगे, चाहे वो बोर्डम के लिए है, चाहे वो स्कूल में कोई डिफिकल्टी के लिए है। कभी कभी हम वैसे भी it's not in our capacity to solve everything for our children. What is there in our capacity is to be present while they are going through it. They are being bored, you empathize, you connect. अच्छा, आपको कुछ भी करने का मन, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, बताओ क्या कर सकते हैं? हेल्प देम ब्रेनस्टॉर्म इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट। अच्छा, ये लो बोर्डम सॉल्व्ड। हाँ, ये स्क्रीन ले उनको लो चांस तो या दो ये गेम बोर्डम ले लो। सॉल्व करने का। अगर हम चांस ही नहीं देंगे तो उनको कैसे आएगा टू बी इसीलिए कंफर्टेबल? आज की एज में जो टीनेजर्स हैं या जो यू नो अर्ली 20s में हैं या इनफैक्ट और भी 30s 40s में भी, वी आर सो नॉट ओके विद गेटिंग बोर्ड। इतना सा भी 5 मिनट का टाइम होता है, मैं खाली होती हूँ तो मुझे फट से या तो स्क्रीन चाहिए या तो मुझसे कोई बात कर लो या मैं किसी से बात कर लूँ, कुछ तो दिस एक्टिविटी दे दो। वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन इज, अब देखो रील्स 30-30 सेकंड्स में चेंज हो जाती है, हमारा फोकस, हम बोर हो 30 जाते हैं हम बहुत सेकेंड्स, जल्दी। यू नो जब रील्स आए थे तो रील में वो आगे खिसका के देखने का फंडा नहीं था। मतलब आपको पूरी देखनी पड़ेगी। अगर 20 सेकंड किया तो यू हैव टू गो टू द 20th सेकंड कि टू सी कि वो रेसिपी एंड में कैसी बनी। अभी क्या है, वो आप आगे फॉरवर्ड करके रील को भी देख सकते हो। मतलब लुक एट द जमाना। पेशेंस पेशेंस कहाँ से बिल्ड होएगी? मैं वही देखती हूँ। मतलब इट इज सो फनी कि हमें एक रेसिपी सीखनी है किसकी, एक हेल्दी सैलेड की। उसमें सैलेड कट रहा भी है, उसमें ड्रेसिंग भी डल रही है, ड्रेसिंग की रेसिपी भी आ रही है और उसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल भी हो रही है, सारा हो रहा है 15 सेकंड में। उसमें भी हमें सीधा शुरू के 2 सेकंड और लास्ट के 2 सेकंड में इंटरेस्ट है और होना है हमें हेल्दी। क्या हम हेल्दी हो पाएंगे? सब कुछ तो एक क्लिक पे है। मैं वही कह रही हूँ, क्या हम हेल्दी हो पाएंगे? ये तो दिमाग में बन गई ना रेसिपी। दिमाग ने तो लगा कि हाँ मैंने सैलेड खा लिया, बट फिजिकल बॉडी को तो कोई बेनिफिट उसका ना होगा ना हो पाएगा, क्योंकि फिर वो 4 सेकंड में दिमाग खुश हो गया कि अच्छा सैलेड तो खा लिया, चलो अभी घूमते हैं। अरे कश्मीर के, अरे 15 सेकंड से बस बर्फ 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 दिख रही, हटाओ हटाओ हटाओ, चलो केबल राइड आ गई। दैट इज व्हाट आवर माइंडसेट इज कि वो रील के 20 सेकंड में भी हमें वो हाई पीक्स कहाँ पे है। हर चीज में ये पीक चेजिंग, पीक ऑफ डोपामीन, पीक ऑफ हाँ, इमोशन, पीक ऑफ फीलिंग हैप्पी। हर वक्त हमें जो ये चाहिए ना, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ स्लो ड्रग फॉर आवर ब्रेन विच इज काइंड ऑफ करप्टिंग अस टू चेज आफ्टर। तो मुझे लगता है कि एक सोल्यूशन जो हम इस एपिसोड से दे सकते हैं वो ये है कि यार बच्चों को, आई डोंट नो, यू हैव टू वैलिडेट दैट एज अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट, कि बच्चों को बोर होने के लिए छोड़ना चाहिए। बिल्कुल छोड़ना चाहिए और आपको उसकी बोर्डम से कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इशिना, हाउ टू नर्चर द सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ अ चाइल्ड। हमने जो लार्जली अभी तक बात ये की कि हाउ वी काइंड ऑफ हैम्पर और हिंडर द सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ अ चाइल्ड, और एक पर्सनल ग्रोथ का, इनफैक्ट थेरेपी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम जो है कि आपको सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए। योर सेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। सो हाउ कैन वी इनकलकेट दैट इन आवर चिल्ड्रन? The first thing to remember is that the opinions of your children may be different from yours. सेल्फ एक्सप्रेशन मीन्स उनके सेल्फ से क्या वो एक्सप्रेस कर रहे हैं।
तो जब वो कुछ ऐसा एक्सप्रेस करते हैं जिसको आप अग्री नहीं करते हो, तो क्या आप उनको बिल्कुल शन कर देते हो कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे? क्या आप उनको अलाउ करते हो? यू लिसन टू देम, यू कंसिडर इट, यू माइट से आई माई नॉट अग्री विद इट। दैट्स वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। हम कितनी चीज़ें हैं जिस चिल्ड्रन हैव सो मेनी क्वेश्चंस, कभी कभी हम उनको आंसर भी नहीं कर पाते हैं। दे आर सो क्यूरियस, वो एक्सप्रेस करने के लिए वो सब कुछ पूछ रहे हैं। क्या आप उनको वो आंसर्स दे पा रहे हो? क्या आप उनको वो स्पेस दे पा रहे हो? कभी कभी हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उनके क्वेश्चन से। अगर वो एक छोटा सा बच्चा आके आपको पूछ लेगा कि वो मूवी में जो वो किस कर रहे थे वो क्या, हम बोलेंगे कि नहीं बेटा ये बातें नहीं पूछते, या ये क्या बोल रहे हो, या हम उनको ये नहीं बोलेंगे तो हम उनको बात को घुमा देंगे। पर हमने उनकी, अच्छा हमने नहीं बोला मतलब क्या मन में नहीं है? हमने बात नहीं करी तो क्या बच्चे के दिमाग से निकल गई? क्या हम उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं? क्या हम उनकी बातों को कंसिडर करते हैं? यहाँ पे उनको समझ आता है कि आई एम हर्ड, आई कैन हैव ओपिनियंस। यहाँ से उनका सेल्फ एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है। देखो, डिसिप्लिन के साथ स्पेस देनी बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन शुड नॉट बी सफोकेटिंग, एक्सप्रेशन विल गेट फिनिश्ड, वो अंदर दब जाएगा। डिसिप्लिन उतना रखो कि बीच में वो स्पेस हो दैट दे कैन बी देमसेल्व्स, अलाउ चिल्ड्रन टू बी देमसेल्व्स अराउंड यू। Also, there is a big role of positive reinforcement या praises या encouragement का, वो भी एक बहुत बड़ा role है in upbringing your child. So, what are the ways in which we can praise our child without, uh, you know, without kind of stroking their arrogance or their ego, but a meaningful praise? How does it look like? दिखती कैसी है एक meaningful praise? कैसी होती है? When you're genuine, when you go beyond the words of good girl, a good boy, when you actually praise what they are doing, when you make it more descriptive, when you're not praising just so that they behave better, when you're actually interested in what they're doing. एक बच्चा आपके पास पेंटिंग लेके आता है, वो कहता है देखो देखो, हम हमेशा कितने बिजी होते हैं चीज़ों में, हम बोलेंगे वाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मे बी अ प्रेज विल बी योर जेन्युइन क्यूरियोसिटी और योर जेन्युइन इंटरेस्ट इन दैट पेंटिंग, और से अरे आपने वो जो ये ग्रीन कलर का ऐसे ऊपर करके बनाया, ये क्या, अच्छा ये पेड़ बनाया है आपने, अच्छा ये ऊपर आपने आज ब्लैक क्लाउड्स बनाए हैं, अच्छा रेन होने वाली है, हाँ ये तो हाँ आपने बहुत अच्छा सोचा। अब यहाँ बच्चे को आपने वैलिडेट किया, बच्चे, और वी आर प्रेजिंग व्हाट दे आर डूइंग, द एफर्ट नॉट द आउटकम, That is such क्योंकि a आउटकम तो beautiful हमारे thing. हाथ में है ही नहीं। आपने बेटा एग्जाम के लिए कितनी पढ़ाई करी मैंने देखा था, ग्रेड्स तो बेटा हमारे हाथ में नहीं है, पर आपने ट्राई किया, दैट्स इंपॉर्टेंट। और अगर ए प्लस आ भी गया है तो वो लोग ग्रेड तो बहुत अच्छा है, पर जैसे तुमने इस बार डेडिकेशन के साथ पढ़ा ना, वो बहुत अच्छा था। एफर्ट ही हमारे हाथ में है, सो प्रेज द एफर्ट। आउटकम ठीक है, बिकॉज अदरवाइज वो आउटकम के पीछे भागने लग जाएंगे बच्चे। अच्छा, अगर घर में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हों, सिबलिंग्स हों, हाउ डू पेरेंट्स और हाउ शुड पेरेंट्स नेविगेट थ्रू द सिबलिंग राइवलरी? क्योंकि बहुत झगड़े होते हैं बच्चों में, और बचपन में एक आपस का प्यार, इंटिमेसी बिटवीन सिबलिंग्स भी क्रिएट होने का एक फोरग्राउंड है। बिल्कुल, तो अगर आप उस टाइम पे कैसे नेविगेट करो उनके झगड़ों में? देखिए बात ही हम ऐसे करते हैं सिबलिंग राइवलरी, हमने बना लिया है कि सिबलिंग्स के बीच में राइवलरी होगी, मे बी क्योंकि बच्चे लड़ते हैं, बट राइवलरी नहीं है। दे आर ऑल्सो लर्निंग हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। वो तो हमारे साथ भी कर रहे हैं वही सब कुछ, मुझे चाहिए आइसक्रीम नहीं मिलेगी, वैसे ही उनको एक दूसरे के साथ होता है। तो लेट्स नॉर्मलाइज दैट दे आर गोइंग टू समटाइम्स हैव फ्रिक्शंस एंड समटाइम्स दे आर गोइंग टू बी हैप्पी टुगेदर, जो हम देखते हैं घर में, सो दैट हमारा पर्सपेक्टिव उस तरह से ना चले, बिकॉज वो बहुत इफेक्ट करेगा बच्चों को। ये लड़ते ही रहते हैं, ये पूरा टाइम ही लड़ते हैं, एक दूसरे की सुननी ही नहीं है, ये तो एक दूसरे के साथ एक कमरे में ही नहीं रह सकते। अगर हम इस तरह से बोल रहे हैं तो ये चीज़ बच्चे सुन रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो थिंकिंग हम ऐसे ही हैं। अब यहाँ से हम उनकी बॉन्डिंग मुश्किल हो जाएगी। द सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज कि क्या हम कहीं गलती से कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बच्चे आपके ही हैं बट दोनों अपने आप में अलग हो सकते हैं। Maybe you had a child who was listening to you a lot, who was a very obedient child, and now you got a child who is more strong willed, who has more opinions, and who will keep their who have more tantrums maybe. सब बच्चों का डिफरेंट। अगर हम ये बोलेंगे यार ये तो सुन लेती है मेरी बात, ये नहीं सुनता, इसने बहुत तंग किया हुआ है, ये इसके साथ तो मुझे पता ही नहीं चला, इसके साथ तो मुझे पता चल रहा है मैं पेरेंट बनी हूँ, हम कितनी नॉर्मली ये बातें बोल देते हैं, बट फ्रॉम इनसाइड दैट चाइल्ड, उनमें क्या फीलिंग आ रही है अपने सिबलिंग के लिए,
वो कंपैरिजन हम अननोइंगली जो कर रहे हैं ना, वो बहुत रिफ्ट क्रिएट करने के चांसेस रखती है. सो बी केयरफुल. देन व्हाट टू डू इंस्टेड? एक्सेप्ट. ये ऐसा है, ये ऐसे, ये दोनों स्पेशल है. हाँ, इसका एक नेचर है, ये इस तरह से बिहेव करते हैं, इसका एक नेचर, ये अपने ओपिनियंस बहुत स्ट्रांगली रखता है. दोनों को पॉजिटिव रीइंफोर्स करना दोनों की बेसिकली. स्ट्रेंथ्स अलग है ना. आपका एक पर्सपेक्टिव है गुड चाइल्ड का, आप उससे कंपेयर करके दोनों को सेट कर देते हो. तो और तीसरा, ट्राई नॉट टू इंटरफेयर एज मच इन देयर फाइट्स. इन देयर फाइट्स. इंटरफेयर में भी कभी कभी करना पड़ेगा, क्योंकि वो मांग रहे हैं इंटरफेरेंस या हर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, छोटे बच्चे. इंटरफेयर शायद करना पड़े, तो हर बार सॉल्व नहीं करो. हर बार एक रेफरी मत बन जाओ कि बेटा देख, तूने पहले देखा था ना, अब उसको देखने दे, कि अब देख तू, अब इस बार इसकी टर्न है. हर बार बच्चे आप ही के पास आएंगे सॉल्व करवाने के लिए. वो खुद में सॉल्यूशन ढूंढने की कैपेसिटी कैसे लर्न करेंगे अगर हम ही हमेशा सॉल्व करेंगे? अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू फॉर्म देयर ओन रिलेशनशिप. Wow, that is such a beautiful thing. So we have to take a back seat sometimes. It will be uncomfortable because as a parent you want to solve everything. You want to make the situation normal as quickly as possible. And you want to Normal be for who? fair. Normal for everyone. Yes. And you don't realize, मतलब these are some very subtle realizations कि आप उनको decision making नहीं करने दे रहे हो, आप उनको conflict resolution नहीं सीखने दे रहे हो, आप उसको interpersonal communication से या क्या healthy bargain आप कर सकते हो आपस में, वो skill develop ही नहीं हो रहा है. अरे उनके पास ये opportunity है. Children who have siblings have the opportunity to learn all these things that you are just saying. वो opportunity दो. Ishina, it was such a beautiful conversation with you about the subtle and not so subtle aspects of parenting. And जितना हमें ये चाहत है कि हमारे बच्चे अच्छे हों, सफल हों, ऐसे हों, वैसे हों, हमें ये खुद भी देखना समझना चाहिए कि हम कैसे हैं, हम ऐसे हैं या वैसे हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो विंडो फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोइंग योरसेल्फ, जैसा आपने बताया. Now, towards the end of this conversation, there's one question that I ask all of my guests, and that is their definition of success. So, here I want to invite your definition of being a successful parent. I know it's very tricky. I know it's very subjective. I know it's difficult to give one answer. But if you have to cast a blueprint for a successful parent, what does it look like? Okay, tell me any three things that it entails. If you are being realistic with yourself, because if you're being realistic, then you'll be happier. If you're chasing perfection, it's difficult to be successful. As a parent. So keep growing. Go for growth. If you want to be a successful parent, keep learning from your mistakes. Allow mistakes. If you are going to think that I'm only going to be successful if I'll never make mistakes as a parent, then you're going to not be a happy parent. So make mistakes, learn, grow, be conscious of yourself, take the journey within, and you will be a successful parent, definitely. Understand your child, understand yourself, be realistic. You know, in the last 2 days, I have shot 5 episodes, and 5 out of 5 of my guests, all of you all have taken the name of the journey within by yourself, which is reinforcing my faith and belief that the only answer, or probably the only factor that we can control in life, whether it's for parenting, whether it's for understanding intimacy, or it's for understanding success in the outworldly world, is taking the journey within. That is probably the only thing that is in our control, and it's probably the only solution to a lot of our life problems. Yes, I agree with it. And children have a tendency of forcing us to take that journey. हम सभी को कैन बी की जो एक परफेक्ट डेफिनेशन है वो तो जानी है, बट ये नहीं पता मैं क्या हूँ आज. अगर मैं आज ऐसा इंसान हूँ जो नेचुरल टेंडेंसी है एंग्री होने की, और मुझे ऐसा इंसान बनना है जो एंग्री नहीं होना चाहता, तो पता तो होना चाहिए ना मेरी नेचुरल टेंडेंसीज और मेरी नेचुरल बिल्ट कैसी है. Yes. फिर उसमें क्या काम लगेगा, क्योंकि अगर आपकी नेचुरल टेंडेंसी और बिल्ट लेट्स से 0 to 10 के स्केल में 5 पे है, तो आपको एक डिफरेंट तरीके का काम लगेगा. आपकी टेंडेंसी 8 पे है तो डिफरेंट तरीके का काम लगेगा. हो सकता है आपको थेरेपी या कुछ बिहेवियरल इंटरवेंशन की जरूरत है. अगर आप 5 पे हो सकता है डिसिप्लिन से या मेंटरशिप से ठीक हो जाए. हो सकता है 3 पे हो तो थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ योर लाइफ से ठीक हो जाए. तो ऑल ऑफ दैट विल कम when you will have a deeper understanding of where you stand today in this journey of growth. So on this And be patient with yourself. It's Absolutely. a journey. It's a journey. So be patient. Don't wait कि मैं ऐसा हो जाऊंगा तो सब कुछ ठीक है, तो मैं सक्सेसफुल हूँ. On this beautiful note, thank you, Ishina, for joining me on the Journey Within podcast. It was such a heartwarming conversation for me. And more than the podcast, I think it was just a
it was like I felt like there are two friends who are chatting about how challenges appear in parenting, in couples, and in life in general. So I would like to tell my viewers at this point that if you want us to bring Ishina again on the podcast and talk to her about some other aspects of parenting, आपके कोई ऐसे सवाल हैं जो आंसर नहीं हो पाए हैं या जो आप और समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए. हम इशीना को रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार फिर से वो हमारे साथ यहाँ पॉडकास्ट पे आए और अपनी विस्डम, अपनी लर्निंग्स, अपनी अप्लाइड नॉलेज को शेयर करें. थैंक्स इशीना. Thank you for having me, Shobha. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड. आई एम श्योर इस एपिसोड से आपको बहुत सारे डीप इंसाइट्स मिले होंगे अपने खुद के बारे में, अपने ओन बिहेवियर, अपने ओन लाइफ के बारे में. ज़रूर लिख के बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको अच्छा लगा. अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं, प्लीज़ मेंशन देम डाउन. एंड इफ़ यू वांट अस टू ब्रिंग इशीना अगेन एंड मे बी अनफोल्ड अनदर एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग विद हर, तो वो भी ज़रूर बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.